तो किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 1? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. Tell me कैसे किया so that others get answer. Octagon. रेडियन को डिग्री में कर Okay. See, question is find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 3 pi by 4 radian. That means अभी हमें दिया है interior angle equal to 3 pi by 4 radian. हमें find out करना है number of sides. Okay. Yeah. Now tell me कैसे किया? पहले कन्वर्ट Radian किया angle रेडियन to degree radians to Okay. degree में 135 135 degree. 35 degree. Okay. So this is equal to 135 degree. ये हो गया मेरा interior angle. Then after that Each exterior angle. 180 Exterior minus angle equals to interior angle 180 minus 45 degree. interior Exterior angle is equal to 45 degree. 45 degree. 45 degree. exterior 45 angle degree. equal to 45 180 degree. minus 135 45 degree 45 degree. 45 degree. Yes. 180 minus 135 45 degree. Okay. Then इसके बाद 360 upon exterior angle divided by 45. 45 Upon number of sides. since each exterior angle is equal to 360 divided by n, so therefore n is equal to 360 degree divided by exterior angle Exterior angle. that is 45 degree, which is equal to 8. 8 8. Okay. So जिसने नहीं किया था मिला आंसर? Yes. Okay. Now next question. The angles of a quadrilateral are in AP and the greatest angle is double the least. Express the least angle in radian. किसने किया है? Yes, ma'am. Yes. 60 degree answer. Answer is 60 pi degree. upon pi by 3 3 radian Pi upon 3 pi by radian. 3 radian Yes, pi by 3 radian. So करना कैसे है जिसने नहीं किया है? अच्छा तुमने एंगल क्या कंसिडर किया? A minus plus D, A minus A plus D A plus 2D One by one. One by one. A plus A D, minus D. A plus D, Hmm? A plus 2D, A plus a minus 3D, d A plus 3D. Okay, ये भी चलेगा. Otherwise you can consider a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. ये भी consider कर सकते हो. 5 Okay. एंगल हुआ ना मैम 5 एंगल हो 5 एंगल हुआ ना तो इसको करते हो. a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Okay. Then इसके बाद क्या करना है? First condition हमें directly मिलेगा that addition of this angle is 360. 360 Okay. तो अगर तुमने ये first one consider किया है तो a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d is equal to 360. 360 degree. Okay. Then इसके बाद इसको simplify करो and 3a second plus condition 5d. तुम्हें question से मिलेगा that greatest angle is double the least. तो अब इसमें greatest angle क्या हो गया A plus हमारा? 3D. plus 3D A plus 3D is equals And to 2A. least angle is a. Yes. So a plus 3d is equal to double the 2a. least. That Double the means 2 2a. times a. Okay. So a plus 3d is equal to 2a. इसको इस side लेके आओ. D Simplify is करो. equals to Minus A plus upon 3. 3. Then ये दोनों equation solve करो. D is equals to A, हाँ. तो d is equal to क्या मिला? A upon 3. a upon 3. तो कोई एक वैल्यू मिला होगा ना दोनों में से 20 एक. 20 20. d equals to 20 E equals to 20 Equals to 20. A equals to 80 a equals to A A equals to 80 80. Okay. So A final 60. answer A is equal to 60. A 60. A equals A equal to 60 or 80? 60. no miss 80 80 80. 60. 60. 80 एक मिनट जिसको 60 मिला है कौन सा कंसिडर किया है दोनों में से? First. तो फर्स्ट वन से तुम्हें दो आंसर आ रहे हैं 60 एंड 80.
60. 80. 80 A. मैम लीस्ट एंगल 60 है. हाँ yes, least angle 60 है. 60 Yes, and least- 20. 60. A 60, D 20. तो ए तुम्हें 60 मिलेगा बिकॉज लीस्ट एंगल, मेरा फाइनल आंसर 60 आएगा एंड हियर माय लीस्ट एंगल इज ए, तो आंसर ए इज इक्वल टू 60 आना चाहिए. चेक करो कैलकुलेशन एक बार, Yes. 80 आ रहा है तो Yes. ठीक है. ये कैलकुलेशन, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली प्रॉपरली सॉल्व करो. मैम लीस्ट एंगल ए माइनस डी लिया है, सो ए 80 आएगा ना. मैम A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D में A 80 आ रहा है. एक मिनट, इट्स डिपेंड्स अपॉन कि तुम लोग इक्वेशन क्या कंसिडर कर रहे हो. Yes. इसको 60 Yes. मिला है लीस्ट एंगल. सी आंसर मेरा 60 ही आया, लीस्ट Yes. 60 आएगा. ठीक है. नाउ बैक टू वैल्यू ऑफ ए एंड डी. तो ये डिपेंड करेगा कि तुम लोग ने इक्वेशन क्या कंसिडर किया है. समझ रहे हो? Yes. यस. तो जिसने भी a माइनस डी से शुरुआत की है, a माइनस डी एंड देन फर्दर एंगल्स, तो उस टाइम पे तुम्हें a इज इक्वल टू 80 एंड d इज इक्वल टू 20 मिलेगा. बट जिसने इक्वेशन स्टार्ट किया है a प्लस डी, a प्लस 2d से, उन लोग को a इज इक्वल टू 60 मिलेगा. 60. समझ रहे हो? Yes. Yes. या सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन कि तुम लोग ये क्या कंसिडर कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे a और d सबका अलग अलग हो सकता है, बट फाइनल आंसर जो है एंगल वो तुम्हें सेम मिलेगा सबको आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d. क्लियर? Yes. ओके. नाउ सेप्टागोन ना Septagon. किया है किसी ने? Yes. Yes. मिला आंसर? Yes. Decimal में मिला. डेसिमल में डिग्री मिल रहा है पर रेडियंस का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है. रेडियंस का अच्छा एक मिनट. Septagon, number of sides, that is n is equal to 7, 7. and therefore number of exterior angle will be 7. ठीक है. Since sum is 360, sum of exterior angle, each exterior will be 360 divided by 7. 7. 7. ये तो इसको अभी डिवाइड मत करो. And therefore each interior equal to 180 minus 360 divided by 7. इसको सॉल्व करके क्या मिला? 120, 1000. 51.43. 51.43. एक्सटीरियर एंगल है. Wait, मैम wait. उसको राउंड ऑफ 128. 51.42. 51.42. पक्का? मैम 151 है. 51. Miss 128 है. अरे Wait, 128 बाद में रे, 180 से माइनस करने के बाद 128 है. तो 180 से Interior माइनस तो angle. है. ये इंटीरियर एंगल है. आंसर क्या मिला? 128. 128.57. 128.57. Okay, wait, let me 128.57. wait, let me do it. मैम उसको राउंड ऑफ करो ना, आंसर आता है रेडियन में. 128.57. मैम स्किन चीज हो गया. Yes. बराबर? Yes. Yes. So this is in degree. Then इसके बाद हमें क्या करना है? इसको Radian. रेडियन में कन्वर्ट करना है. Radian. करेक्ट. हाँ. Then ये मैंने इंटीरियर निकाला ना.
Interior angle is equal to ओके पीछे आंसर तुमको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दिया है क्या? Yes. Yes. मैम हम्म आप अगर उसको राउंड ऑफ करोगे ना 129 लिया ना आपने तो फिर रेडियंस में आंसर आता है पीछे ना 43 pi by 60 हाँ। 43 pi by अगर 60 आ रहा या अगर पीछे एग्जैक्टली मतलब राउंड ऑफ करके आंसर लिया है तो तुम Approx. लोग भी यहाँ पे राउंड ऑफ हाँ या अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो. है 129. 129 साइन यहाँ पे डालो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 129 डिग्री देन इसकी जगह पे लो 129 विच इज इक्वल टू एंड देन इसके बाद सॉल्व करो. कुछ कैंसिल होगा क्या? 43 pi by 43 pi by 60. 43 pi by 60. ओके मैम अगर हमने 180 माइनस 360 अपॉन 7 को फ्रैक्शन में रखा तो उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो लाइक 900 अपॉन 7 इंटू पाई बाय 180 आता है. वो भी चलेगा. अगर तुम्हें यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है देन दिस इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 7 इंटू पाई बाय 180. 180. फिर इसके बाद जितना कैंसिल होता है कैंसिल करो एंड 5 अपॉन 7 सब रहने दो ऐसे. पाई 5 अपॉन 7 पाई 5 पाई बाय 7. 5 पाई बाय 7 मिल रहा है. हाँ यस नो प्रॉब्लम. अगर राउंड ऑफ नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली सिर्फ ऐसे ही आंसर लिखो चलेगा. ओके मैम. और अगर राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली साइन देके दिस इज इक्वल टू 129 डिग्री. ओके मैम थैंक यू. सो ओके पक्का सबने होमवर्क किया है? Yes. 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 सो आई कैन ट्रस्ट यू. सो मैं आज क्वेश्चन नहीं पूछ रही. ओके okay so last time we did up to length of arc and area of sector, correct? Yes. So you remember formula? What is length of arc? S equals R theta. R theta. R R theta. theta. Length of arc we denoted by S, which is equal to R theta. And speciality क्या है यहाँ पे? Theta is in radians. Theta is in radian. And area of sector? half into R. Theta R square Half theta. into R square theta. Half R square Theta. theta. Half R square theta. R square theta same. Theta in radian, correct? Half into RS. Yes. हाफ इंटू आर एस भी यूज कर सकते हो अगर RS ऐसा upon 2. ठीक है. ओके नाउ बैक टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं. एक्सरसाइज 1.2 नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. Find the length of an arc of a circle which subtended which subtends an angle of 108 degree, which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter. See, you can solve this very easily, I'm sure. Question is find the length of arc, that is हमें S find out करना है. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन रीड करना है हमेशा एंड जो भी डेटा हमें मिलता जाएगा वो लिखते जाना है. ये टिप है फॉर वर्ड्स प्रॉब्लम. ओके फाइंड द लेंथ ऑफ अ आर्क
of a circle, that means S हमें find करना है, which subtends an angle of 108 degree at the center, that means थीटा हमें दिया है 108 डिग्री, जो हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, करेक्ट. Then if the radius of the circle is 15 centimeter, that means r is equal to 15 centimeter. Now हमारे पास फॉर्मूला है s is equal to r theta. So r is given, theta is given, except that theta is in degree. बराबर. तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में एंड देन उसके बाद सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे. तो कैन यू डू इट? तो स्टार्ट करो. गिवन 3 pi by 5 radian. means 9 pi. S 9 equals pi. to 9. 9 पाई मिला सबको 9 पाई. Yes. या एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन यूनिट्स. ओके. सो अभी आर हमें दिया है सेंटीमीटर में, सो देयरफॉर बाकी सब भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा. सो एस इज इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर. ओके. थीटा क्या मिला मुझे बताना. 3 by 5 radian. 3 by 5 3 pi pi by by 5 radian. 5 radian. यस. थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 5 रेडियन. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 108 बाय पाई बाय 180. एंड फाइनली s इज इक्वल टू r इंटू थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 15 इंटू 3 पाई बाय 9 5 pi. which is equal to 9 pi centimeter, and write down final answer. Therefore length of arc of circle is 9 pi centimeter. Clear? Next one. Second, the radius of circle is 9 centimeter. The radius of circle is 9 centimeter. Find the length of an arc. Find the length of an arc of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. Equal to length of radius. I repeat, the radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. Okay, now see, starting में हमें दिया क्या है? The radius of circle is 9 centimeter. That means r is equal to 9 centimeter. Find the length of arc. That means s हमें find करना है. Now the condition is the length of a chord cut by this arc is equal to radius. ठीक है. Suppose ये मेरा chord है, इसका length मुझे दिया है equal to radius. So suppose ये दोनों मेरा r is equal to 9 centimeter हो गया radius, and therefore this length of a chord AB is equal to 9 centimeter. So what can you say about this triangle? Equilateral. triangle. Okay, equilateral triangle. And equilateral triangle का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 Degree. 60 degree. 60. So here every angle will be 60 degree. तो अब तुम्हारे पास सारे डेटा हैं. To find out s, since s is equal to r theta, r is 9 centimeter, theta is 60 degree, convert it into pi by radian. 3 radian. Then yes, pi by 3 radian, and then substitute करो इसमें and value find out करो. 3 pi. 3 pi.
S is equals to 3 pi centimeter. Yes. S is equal to 3 pi सेंटीमीटर. मिला सबको? I'm assuming that everyone is doing calculations. Yes. So if Yes. you have any doubts, then ask me there only. Okay? कोई भी डाउट होगा उसी टाइम पे पूछो. Done? And don't worry about writing answer. वो मैं PDF में लिख के सेंड करूंगी. ठीक है? So third one, find the angle in degree. Find the angle in degree subtended at the center of a circle. Find the angle in degree subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter. Whose length is 15 centimeter. If the radius of the circle is 25 centimeter. If the radius of a circle is 25 centimeter. Suchit, Yes, ma'am. can you read this question again and tell me what is given? जो भी दिया है. Length of arc दिया है. हाँ, length of arc दिया है. That means S is equal to 15 centimeter. 15 centimeter. Radius दिया है 25 centimeter. 25 centimeter. अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? Theta. In Radian. रेडियन और डिग्री. नहीं, डिग्री. अच्छा, so explain कर सकते हो हम कैसे करेंगे? पहले सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में. S is equal to R theta. करेक्ट. 15 is equal to R into 25 into theta. That means theta is equal to S by R. हाँ. है ना? So 15 upon 25. Theta is equal to 3/5. 3/5. तो मुझे ये अभी डिग्री में मिला या रेडियन में? ये रेडियन में मिला है शायद. यस. नो, नॉट शायद. हाँ. फिक्स बताओ. हाँ, रेडियन. बी श्योर अबाउट योर आंसर. ओके, रॉन्ग हुआ तो भी कोई बात नहीं. सो थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियन. समझा सबको? क्वेश्चन में हमें ये दो वैल्यू दिया है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है इन डिग्री. सो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एंड फाइंड आउट थीटा इक्वल टू 3/5. अब ये जो मुझे थीटा मिला है वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में है, बट मुझे आंसर किस में पूछा है? डिग्री में. तो इसको कन्वर्ट करो डिग्री में. One 108/5. 14.36 centimeter. No need to find out in decimal, but it's okay, चलेगा. 108 divided by pi डिग्री. कैंसल करोगे तो भी चलेगा, नहीं करना है इसको ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी एम आई गोइंग फास्ट? No. Fourth one, a pendulum of length 14 centimeter. A pendulum of length 14 centimeter
oscillates through an angle of 18 degree. Oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. Find the length of its path. Ma'am, will you please repeat the question? Yeah, sure. A pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree, 18. Find the length of its path. Sanika? Sanika? Unmute yourself. यस मैम। सानिका क्वेश्चन लिखा? नहीं मैम, मेरा ब्लर आ रहा है ये स्क्रीन। मैंने स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ। नहीं, आपने कुछ आई थिंक ट्रायंगल निकालना है ना? एंगल नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन लिखा तुमने? नहीं मैम, कुछ मतलब मैम ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब स्क्रीन का नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है सामने? नो मैम, आई हैव नॉट परचेज्ड इट। ओके, सो इसीलिए मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ ना तुम्हें। राइट डाउन क्वेश्चन। I repeat it once. A pendulum of length 14 centimeter. A pendulum of length. 1 minute. Yeah. One minute. Yeah. Don't worry, don't panic. Hello. हाँ, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सानिका? हाँ मैम। हाँ, लिखो लिखो लिखो। A pendulum of length. 1 minute. A pendulum. A pendulum of length 14 centimeter. Yeah. Oscillates through an angle. A pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Yes. Find the length of its path. कुछ मिस हो गया हो तो स्क्रीन पे देखो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैम स्क्रीन परफेक्ट मतलब क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। नेटवर्क इशू है तुम्हारे इधर? हाँ मैम। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखा ना? हाँ, 1 मिनट। अभी क्वेश्चन रीड करो एंड समझने की कोशिश करो कि हमें दिया क्या है, ठीक है? यस। जयश्री? हेलो मैम। Yes, can you repeat please the question again? A pendulum of length 14 centimeter. Yes. Oscillates through an angle of 18 degree. Oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. Okay. Thank you. Yes. Aryan? आर्यन? हेलो। हाँ मैम। क्वेश्चन लिखा है? हाँ लिखा है। ओके, समझ आया क्या दिया है? हाँ मैम। ओके, क्या समझ आया? मैम हमें लेंथ ऑफ आर्क दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क हमें 14 दिया है। देन हाँ, देन थीटा दिया है 18 डिग्री।
और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें आर करना है, रेडियस। पक्का? पक्का, एक सेकंड। सी वापस रीड कर। लेंथ ऑफ इट्स पाथ, a length of a pendulum of length 14 centimeter. सपोज ये मेरा पेंडुलम है, सपोज दिस इज माय पेंडुलम, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो पेंडुलम अभी क्या करेगा? सपोज वो लेफ्ट में जा रहा है पहले और फिर राइट में आ रहा है, ठीक है। सो ये ऐसे मूव करेगा, दिस दिस, है ना। देन यहाँ पे, देन बैक टू हियर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? उसका पाथ फाइंड करना है। दैट मीन्स ये जो नीचे नीचे जो ये ऑसिलेट हो रहा है, ये पाथ हमें फाइंड करना है जब ये वाला लेंथ हमें दिया हो पेंडुलम का। अब बताओ मुझे, आर दिया है या एस दिया है? आर दिया है, आर दिया है। आर, तो हाँ, आर इज इक्वल टू 14 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एस हमें फाइंड आउट करना फाइंड है, करना है। यस, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। सो यस, थीटा को कन्वर्ट करो रेडियन में। थीटा इक्वल टू 18 डिग्री डिग्री, is equal to 18 upon pi by 180 रेडियन। देन इसके बाद r is equal to 14 सेंटीमीटर एंड s is equal to r theta पाई बाय 180 which is equal to 14 into, ये मेरा हो जाएगा थीटा इज, कैंसल करोगे तो pi by 10 रेडियन। so this is pi by 10 which is equal to, ये क्या हो गया अभी? 7 7 pi by 5. 5 7 pi by सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, अगर किसी को कैंसल करना है, सो पाई इज इक्वल टू 22/7 सब्सटीट्यूट करो, 3.14 मत लो, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 7 है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। टेक 22/7, 7 कैंसल हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर। या 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर। आइदर 4.4 सेंटीमीटर में लिखो आंसर या फिर 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर, दोनों चलेगा। ओके, यस मैम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। Two arcs of the same length, two arcs of same length subtend angles of 60 degree and 75 degree. Two arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. At the centers of two circles. What is the ratio of radii of two circles? I repeat, two arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. What is the ratio of radii of two circles? पहले क्वेश्चन रीड करो, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है।
ओके, सो क्वेश्चन रीड किया? Yes. या सो गिवन कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास दो सर्कल है. ओके, देर आर 2 सर्कल्स. सो सपोज इसका रेडियस r1 है एंड सेकेंड वन का r2. ठीक है, सपोज इसका जो एंगल आएगा वो θ1 होगा एंड इसका θ2. सिमिलरली फॉर फर्स्ट सर्कल टेक लेंथ ऑफ आर्क इज s1 and for second length of arc as s2. now apply given conditions that अभी हमें दो एंगल दिया है as θ1 equal to 60 degree and θ2 is equal to 75 degree. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो. 60 into pi by 180 रेडियन which is equal to pi by 3 रेडियन. Similarly 75 into pi by 180 रेडियन which is equal to 5 pi by 12 रेडियन. करेक्ट, ये हो गया मेरा θ1 एंड θ2. आफ्टर दैट अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? r1 एंड r2 का रेशियो फाइंड करना है. हमें s1 एंड s2 दिया है, दे बोथ आर इक्वल. ओके, नाउ सिंस s1 इज इक्वल टू r1 θ1, s2 इक्वल टू r2 θ2, बट s1 इक्वल टू s2. अब अगर LHS इक्वल है दोनों का तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, बराबर. सो देयरफॉर r1 θ1 इज इक्वल टू r2 θ2. हमें क्या फाइंड करना है? r1 एंड r2 का रेशियो फाइंड करना है. सो r1 r2 एक साइड लेके आओ, θ1 θ2 एक साइड, बराबर. सो हियर r2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद θ2. इस साइड लेके आओगे तो डिवीजन में r1 बाय r2. दिस इज इक्वल टू θ2 डिवाइडेड बाय, टेक θ1 हियर, θ1. ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. दैट योर θ2 इज 5 pi by 12 डिवाइडेड बाय θ1 इज pi by 3. ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल हो गया, पाई बाय 12 into 3 by 1 which is equal to 5 by 4 r1 by r2. so therefore रेशियो मुझे क्या मिला? r1 is to r2 equal to 5:4. ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे कंसिडर किया r2 बाय r1 तो मेरा ये रेशियो चेंज हो जाएगा θ1 बाय θ2. 4:5. या दोनों भी आंसर करेक्ट है जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, बट फाइनल आंसर लिखते टाइम करेक्टली लिखना. अगर तुमने r1 बाय r2 फाइंड किया है सो r1 is to r2 is 5:4 and if you want to calculate this r2 by r1 तो r2 is to r1 तुम्हें मिलेगा 4:5. ठीक है, एनी डाउट्स? नो. No. ओके, नोट डाउन. अगर किसी को नोट करना है I'll wait for 2 minutes. Done, ma'am. Done? Yeah, next one, question number 6. The area of circle is, the area of circle is 25 into pi square centimeter. The area of circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its arc. Find
the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector. Find the area of corresponding sector. I repeat, the area of circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector. Okay, so first of all, write down all data जो भी दिया है. Area of circle is 25 pi centimeter square. S हमें find करना है. Theta is given 144 degree and area of sector find करना है. We know that S is equal to R theta. But इसमें से सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास है थीटा, which is equal to 144 डिग्री. इसको करेंगे रेडियन में कन्वर्ट. बट अभी हमारे पास R नहीं है यहाँ पे. सो R कैसे फाइंड करेंगे? यूज अनदर डेटा सर्कल जो हमें दिया है. यस, एरिया ऑफ सर्कल is equal to 25 pi, but we know that area of circle is pi r square. So pi r square equal to r equals to 25 5. pi. R is equal to 5. Okay. Now remember this. जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं हमें दो वैल्यू मिलती है. R is equal to प्लस और माइनस 5. बट यहाँ पे हम -5 क्यों नहीं यूज कर रहे? बिकॉज R is लेंथ. ओके, सो यहाँ पे तुम डायरेक्टली 5 ले रहे हो, पॉजिटिव चलेगा. बट अगर हम फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उस टाइम पे तुम्हें ये रिपीट नहीं करना है मिस्टेक. R इज इक्वल टू हमेशा प्लस एंड माइनस 5 लेना है. ठीक है, यहाँ पे नहीं लिया चलेगा. सो R is equal to 5 centimeter. Substitute this value here. Find out S. S is equal to 5 into 4 pi. 144 into pi by 180. कितना मिला? 4 pi. 4 pi. Okay. 4 pi by 5. 4 pi by 5. ये तो मेरा थीटा हो गया. वेट, 4 pi. So S is equal to 4 pi centimeter. बराबर मिला सबको? Yes. S is equal to R theta. R is pi into थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 4 pi by 5 which is equal to 4 pi. So S is equal to 4 pi centimeter. अब मुझे फाइंड क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मेरे पास दो फॉर्म है. हाफ R स्क्वायर थीटा, आइदर यूज दिस, और हाफ इंटू R S. जो भी दोनों में से यूज करना है कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे हाफ इंटू R S यूज करूंगी बिकॉज इट्स इजियर कैलकुलेट. 10 pi. 10 pi. एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ इंटू R इज इक्वल टू 5. S हमने कैलकुलेट किया है 4 pi which is equal to 10 pi centimeter square. Done? Yes. Yes. Okay. Now question number 7 and question number 8 ये दोनों सेम है तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अनदर क्वेश्चन होमवर्क में होगा. ठीक है, तो राइट डाउन 7th one. OAB is sector of the circle. OAB is sector of the circle
having center at O. OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB equal to 45 degree, if measure of angle AOB equal to 45 degree, find the difference between area of sector OAB, find the difference between area of sector OAB and triangle AOB and triangle AOB. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन है, यहाँ पे ट्रायंगल की जगह पे सेक्टर दिया है, ठीक है, तो सेक्टर कट करके ट्रायंगल लिख लेना वहाँ पे, ओके, करेक्शन कर लेना. नाउ क्वेश्चन रीड करो एंड डायग्राम ड्रॉ करो. OAB is a sector of a circle having center O. सपोज ये मेरा सेंटर है O. सेक्टर ड्रॉ करो. हाँ टीचर किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्ब कर रहा है. एक मिनट, लेट मी चेक. तेजस, यस, अनम्यूट कर दो. सॉरी, म्यूट करो. जब आंसर करना होगा तब अनम्यूट करना, या फिर कुछ पूछना होगा तो, ठीक है. सो कंसिडर सर्कल विद सेंटर O. तो ये मेरा सेक्टर हो जाएगा OAB. देन आफ्टर दैट हमें एंगल दिया है, मेजर ऑफ एंगल AOB इज 45 डिग्री, करेक्ट. हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर. सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB. दैट मीन्स ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB. तो ट्रायंगल के लिए ड्रॉ AB. अब मेरा ट्रायंगल क्या हो गया, AOB. हमें डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करो, तो हमें ये पोर्शन मिलेगा डिफरेंस में. ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना तो इजी है, बराबर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा. यू नो दैट आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जिसको तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे, बराबर. सो फर्स्ट वैल्यू तो हमें मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर. अभी हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. तो वो कैसे फाइंड करेंगे. नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर. तो अभी हमें बेस और हाइट चाहिए, तो बेस हमें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर. अगर सपोज ड्रॉ करो BM. कैन यू सी दिस लाइन BM? Yes. Draw this BM perpendicular to OA. BM perpendicular to OA. तो तुम BM कंसिडर कर सकते हो एज हाइट एंड OA एज बेस, बराबर. लेंथ ऑफ BM एज हाइट एंड लेंथ ऑफ OA एज बेस. नाउ द थिंग इज, बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, बराबर, बट हाइट हमारे पास नहीं है वैल्यू. नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल
OBM, ये कुछ ऐसा दिखेगा। OMB, एक मिनट मैंने ओके, वेर O इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड ये है मेरा 90 डिग्री। मुझे ये हाइट फाइंड आउट करना है BM। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एनी आइडिया? पाइथागोरस। Pythagoras. Side opposite to 45 degree. यस, सी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज Pythagoras. मेरे पास H नहीं है, मेरे पास OM नहीं है, बराबर। सिर्फ OB का डिस्टेंस है मेरे पास, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम H नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि 3 में से 2 वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो सिंपली अप्लाई करो sin 45 डिग्री। यू नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, Hypotenuse. बराबर। सो ऑपोजिट हो गया 45 का H एंड हाइपोटेन्यूस इज 12, बराबर। sin 45 is 1 upon root equal to H by 12 and therefore H is equal to 12 by root 2। इसको रैशनलाइज करो, this is equal to 12 root 2 by 2 which is equal to 6 root 2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक समझा? देन Yes. इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to half into base into height. So base is C। अभी हम लोग ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। So base is 12 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड आउट किया है 6 root 2 सेंटीमीटर। So 12 into 6 root 2 which is equal to 36 root 2. 36 root 2. centimeter square, and therefore difference is area of sector OAB minus area of triangle AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर मुझे क्या मिलेगा? 18 सेंटीमीटर। 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन। Pi/4. हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से फाइंड करो, हाफ इंटू आर स्क्वायर इज 144 इंटू पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 36 pi. 18 pi. 18 pi. 18 पाई। 18 pi. 18 पाई, करेक्ट। ठीक है, सो 18 पाई माइनस 36 रूट 2 विच इज इक्वल टू, यू कैन टेक 18 एज कॉमन और नहीं किया तो भी चलेगा, 2 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सी एक बार वापस से स्टेप्स देखो, कुछ डाउट है तो पूछो। स्टार्टिंग से देखो, दिस इज अ प्रीवियस पेज। डन? Yes. Done. Yes.